I want to introduce our beloved Yes, Pastor Reverend Joseph. So he's one of my mentor, my senior. That means if he not enter my life, I am not here. God called me from Tamil Nadu. So God anointed me. He called me. So I was joined in Assemblies of God organization. 6 years I was worked. But after 6 years, I thought our ministry over in North India, so I should pack up and go to Tamil Nadu. The man of God, he came to my rented house. He prophesied me. He gave his hand to help to fulfill his God's purpose in my life. He only initiate me take a passport and they gave all the expenses. My wife and my child, 45 days, my child, we went to Penang. Until today, he is one of my best mentor. Each and every matter I can discuss with him, I can trust him. So he have a big church building in Penang. So whenever I'm going to Malaysia, he very pleasantly, very happily he served me. He accommodated my father. So I thank God today. His prayer, his support. We are able to extend our ministry by Tabernacle of Grace Church. So I have a lot of things to share, but it is not the right platform. So we want to hand over to him. thank you, Pastor. Thank you so much. Thank you. Pastor Joe. Yeah, Yeah, thank you. welcome. Thank you so much. Well, thank you so much. So once again, we welcome you to the Logos Bible platform, where we are learning along with Pastor Bishop and all the team mentors here. And over to you, Pastor. Okay, first of all, I want to thank each one of you for coming online and on site tonight. मैं सबसे पहले सबको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ शाम के समय में आप लोग ऑनलाइन में जुड़ने के लिए. I want to thank Bishop Paul Tamil and also his wife for inviting me to share a few words of encouragement to all of you. और मैं इस शाम के समय में पास्टर बिशप पॉल और उनके पत्नी और उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया कि आकर हमारे इसमें शामिल हो सके और प्रभु के वचन से हमें मनादी कर सके. I send you greetings all the way from Penang, Malaysia. और हमारे कलीसिया जो पिनांग मलेशिया है वहां से मैं आप सभी को अभिनंदन देता हूँ. May God's richest blessing, favor, and peace be upon all of you. और मेरे प्रभु का अनुग्रह और दया और शांति आप सभी के ऊपर सदैव बने रहने पाए. So tonight I want to invite you to open your Bible because it's going to be a short sharing. Let's open the Bible to the book of Ephesians chapter 1, please. और मैं आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को पवित्र शास्त्र खोलें इफिसियों की पत्री अध्याय 1 के. Right, Ephesians, the book of Ephesians chapter 1 and verse 1. इफिसियों की पत्री अध्याय 1 का पहला आयत और दूसरा आयत. इसे कोई पढ़ेंगे. पहले आयत और दूसरा आयत मैं पढ़ता हूं. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. Now it says here Ephesians chapter 1 verse 1 and verse 2. It says Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे. Amen. Father in heaven, we come to your presence tonight. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस शाम के समय में आपके सम्मुख में हम आते हैं. You bless every servant of God tonight. हर एक तेरे दासों को प्रभु जी आप आशीष करें शाम के समय पे. Bless every hearers, I pray. यहाँ पर जितने भी हैं खुदावन जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष करें. Grant me your unction and the anointing of the Holy Spirit.
परमेश्वर आपके अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक होने पाए। In Jesus' wonderful name we all pray. यीशु के अद्भुत नाम में हम सब प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। All God's people say, हम सभी लोग Amen. मिलकर कहेंगे आमीन। Amen. Amen. All right, tonight we talk about this title. आज जो हमारे सामने जो शीर्षक है उसके बारे में देखेंगे, What made a What good pastor? made a good pastor? क्या वो चीज है जो एक अच्छे एक पासवान को बना सकती है? Can you see it on the screen? क्या आप इस चीज, यस पास्टर, वी कैन सी, क्या आप इस चीज Yeah. को देख पा रहे हैं? Yeah, I'm sure all of us we want to be good pastors. हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छे एक पास्टर बने। Now, who doesn't want to be good pastor? कौन नहीं चाहते एक अच्छा पादरी ना बने? सभी चाहते हैं। Everybody wants to be a good pastor. सभी लोग चाहते हैं एक अच्छा एक पादरी बने हम। So for tonight, I want to share 3 very simple thoughts with all of you, how to be a good pastor. आज इस रात के समय में मैं 3 ऐसे मुख्य बातों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। Now, the first one is called his sanctity. और सबसे जो प्रथम है सैंटिटी के नाम से, जो कि पवित्रता के विषय में बात करता है यहाँ पे। His sanctity means his holiness. सैंटिटी यानी जो पवित्रता ही है। Now, if you look at Ephesians chapter 1 verse 1 again, please. अगर आप फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्री अध्याय 1 का 1 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, It says here, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints. That is very important, to the saints. यहाँ पर जो पहले वचन में मुख्य भागों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पे लिखा है कि पहले वचन का दूसरा भाग में अगर आप देखेंगे, उन पवित्र करके लिखा, उन पवित्र कर लोगों के लिए लिखा हुआ है। The word saint means to be sanctified. और यहाँ पर जो पवित्र यानी संतों के नाम जो कहा गया है, उन्हें जो जिनको शुद्धिकरण किया गया है पहले से। It means to be holy. तो यहाँ पर इसको पवित्रता या पवित्रता में बने रहने के विषय में बात करता है। Now that is our identity. और यही हमारा पहचान है। God called each one of us to be saints before Him. और परमेश्वर हम में से हर एक को उसके पवित्र यानी उसका संत के रूप में उसने हमें बुलाया है। So many times people focus just on the outward. और कई बार लोग जो है हमारे बाहर तौर तरीके को देखते हैं। Whether you are good looking or whether you are dressing, your dressing is nice or not. लोग देखते हैं कि आपका बाहर कपड़े कैसे हैं, आप किस तरीके से रहते हैं, आपके बाहर तौर तरीके को देखा जाता है। God doesn't care so much on the outward. और परमेश्वर जो है बाहर की तौर तरीके से वो ज्यादा आपको दिखावे से वो प्रसन्न नहीं होता। God cares for our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। God wants to make sure that we live holy lives. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन को जिएं। So remember our identity if you want to be a good pastor. आपको अगर एक अच्छा एक सेवक बनना है तो पहला आपका पहचान ये होना चाहिए that you are a saint before God. क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख में एक संत हैं। The word saint here means to be holy, to be sanctified. यहाँ पे संत का जो पवित्र का मतलब है पवित्रताई को दर्शाता है। Remember, God can never use an unclean vessel. और आप याद रखिएगा कि परमेश्वर कभी भी एक अशुद्ध वस्तु को इस्तेमाल नहीं कर सकता। God doesn't care on the outward, how you dress, how you look, but God is interested in your heart, whether it is sanctified, whether you are holy before Him. आप याद रखिएगा कि परमेश्वर हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि आप अपने जीवन में किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, यदि क्या आप पवित्रताई में हैं, क्या आप पवित्रताई में बने हुए हैं, उसको देखेगा। Look at this verse in 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. और इस वचन को हम देखेंगे, दूसरा तीमुथी अध्याय 2 का 20 और 21 से पद को हम देखेंगे। Now it says here, in a large house that is in the kingdom of God, in the huge or in the big kingdom of God.
तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का जो घर है बहुत बड़ा है, They are gold and silver, they are wood and clay. वहां पर सोना, चांदी और लकड़ी और जो है मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। Some are for special purposes, some are for common use. कुछ जो है अच्छे विशेष कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ जो है साधारण काम के लिए। But verse 21 says, if a man cleanses himself, और 21 आयत में कहता है यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करे, he will be made holy, the Bible says. तो तुम्हारा लिखा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। Then he'll be useful for the master for every good work. तभी वो परमेश्वर के योग्य काम आएगा, तभी लिखा और वह स्वामी के काम आएगा। So the first thing is very important to be a good pastor is your sanctity before God. और यहाँ पर प्रथम बिंदु जो है आपके लिए मुख्य बात को रखता है, एक अच्छे पादरी या सेवक होने के लिए आपको पवित्रताई में बना रहने की आवश्यकता You है। must remember that you are a saint. That is your identity and that is your calling. You are called to be a saint. आपको याद रखना है, आपका एक पहचान है कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं और वही आपका पहचान ठहरता है। So if you want God to use you, you got to be holy. यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें तो आपको पवित्र में बना रहने की आवश्यकता है। So we have talked about his sanctity. अब हमने पवित्रता के बारे में बात किया। Then number 2, I want to talk about his steadfastness. और दूसरा जो है मैं उसके विषय में बात करूं, स्टेडफास्टनेस यानी उसका जो दृढ़ता के बारे में बात करूंगा मैं। His steadfastness means his faithfulness. और यहाँ पर जो स्टेडफास्टनेस यानी उसका विश्वास योग्यता जो हमारे प्रति है उसके विषय में Now look देखेंगे। at chapter 1 verse 1. और यहाँ पर जो इफिसियों के पत्री अध्याय 1 का 1 वचन को हम फिर से देखेंगे। It says here to the saints who are in Ephesus and faithful. और यहाँ पे लिखा है जो लोग इफिसियों में हैं और जो विश्वासी हैं। Look at the word saint, then number 2, faithful. और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिखा विश्वासी लिखा है और अंग्रेजी में पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी। अंग्रेजी में So इस प्रकार लिखा है। God can use every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है As long as you are holy. जब तक आप पवित्रता में बने रहते हैं परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। Number 2, you can be a good pastor if you are faithful, you are steadfast to your calling. अगर आप एक अच्छे पादरी बन सकते हैं तब जब आप एक पवित्रता में बने रहेंगे, अगर तब आप पवित्रता में हैं तो आप विश्वास योग्य भी रहेंगे। Look at this verse, Hebrew chapter 3 verse 2. इब्रानी के पत्री अध्याय 3 का 2 वचन में हम देखेंगे। It says here, he, that is Jesus, was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. और यहाँ पे लिखा है 3 अध्याय 2 वचन में, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्यता जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। Looking at this verse, we know that Jesus was faithful to God, faithful to the calling that God called him. और यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि इस वचन को अगर देखते समय वह यानी यीशु परमेश्वर के बुलाहट में वो विश्वास योग्य में बना हुआ था। And looking at this verse, we also know that Moses was faithful in all God's house. और जैसे मूसा ने भी परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य व्यक्ति ठहरा है। So God is only looking for 2 things in our life. परमेश्वर यहाँ पे 2 बातों को हमारे जीवन में देखना चाहता है। If you want to be a good pastor, यदि आप एक अच्छा सेवक बनना चाहते हैं, number 1, you got to be holy. You must remember you are the saint. आपको इस बात को याद रखना है कि पहली बात यह है कि आपको पवित्रता में बने रहना है क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। Number 2, God is looking for faithfulness in our lives. परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास योग्यता को वो चाहता है। We got to be steadfast right to the very end. हमें जो है विश्वास योग्यता में अंत तक बने रहने की आवश्यकता है।
Ask yourself, was Jesus faithful right to the end? क्या आप अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, क्या यीशु मसीह अंत तक विश्वास योग्य रहा? Right to the end of his life, all his disciples forsook him. और अंत उसके यीशु मसीह के जिस पृथ्वी के अंत तक उसके विश्वास जितने चेले थे वे सब उसके विश्वास में नहीं बने हुए थे. Some betrayed him. कुछ ने उसको नकार दिया. All turned away when he went to the cross. सभी लोग, लगभग सभी लोग यीशु को छोड़ चुके थे. When he was praying in the garden, everybody was sleeping. 3 of them were sleeping. जब यीशु मसीह उस गतसमने में प्रार्थना कर रहा था, उसके जो खास 3 चेले हैं वो भी सो रहे थे. Did he persevere right to the very end? क्या हम उस घड़ी तक भी क्या हम विश्वास योग्यता में बने रह पाते हैं? We know that Jesus was faithful right to the very end, isn't it true? जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह अपने अंतिम क्षण तक भी वो विश्वास योग्य रहा है. And look at the life of Moses. He too was faithful. और मूसा की जिंदगी को भी देखिए, वह भी परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य व्यक्ति था. Even though the whole nation of Israel came against him, he was still faithful right to the very end. पूरे इजराइल, पूरे जाति उसके विरोध खड़ी हो गई थी, तो भी वह परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्य व्यक्ति था. You may ask, which area should I be faithful? आप शायद आप ये सवाल कर सकते हैं, कौन सा जगह पर मुझे विश्वास योग्यता को करने की जरूरत है? The first area is in the area of prayer. पहला जो आपका जो स्तर है वो प्रार्थना में आपको विश्वास योग्यता में रहना है. Make sure you are faithful to God in your daily prayer. आप याद रखिएगा कि अपने हर रोज की प्रार्थना में आप विश्वास योग्यता में बने रहें. Number 2, you must be faithful in studying God's word. दूसरा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आपको विश्वास योग्यता में बने रहने की आवश्यकता है. Daily you must pray. हर रोज आपको प्रार्थना करना है. Daily you must read his word. हर रोज आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है. Number 3, faithful in your witnessing. और तीसरी बात, आप अपने गवाही को बताने में विश्वास योग्यता में बने रहना. Faithful in telling others about Jesus Christ. और यीशु मसीह को दूसरों को बताने का काम को विश्वास योग्यता के साथ करना है. Number 4, faithful in your giving. और चौथा नंबर इसमें आप देने में, प्रभु को देने में आपको विश्वास योग्यता में रहना है. Even as pastor, we need to be faithful in our tithes and offering. We must give our tithes and give our offering. यदि भी हम सेवक हैं, फिर भी हमें भी अपने दान दशमांश को परमेश्वर के लिए देना अनिवार्य है. Number 5, we must be faithful to God's house. और 5वां जो हमारे कलीसिया है उसके प्रति हमें विश्वास योग्य में रहना है. Wherever God placed you, you may be in a village, you may be in a tiny small town, but if God put you there, let us all be faithful. जहां कहीं भी आप हैं, हो सकता है आप शहर में हैं, या हो सकता है एक छोटे से छोटे गांव में, छोटे समूह में के लिए आप सेवा कर रहे हो, वहां पर आप विश्वास योग्य बने रहें. Number 6, we need to be faithful to our spouse, to our home, to our children. और छठा बात यह है कि आपको अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए आपको विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है. Number 7, we need to be faithful to the Lord. और 7वां, परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास योग्यता बने रहना है. No matter what happened to your life, don't give up on Jesus. और कुछ भी क्यों ना हो, आप मसीह यीशु से पीछे ना हटें. It may be the misfortune may come to your life. Misfortune may come to your life. हो सकता है बुरे से बुरे हालात आपके जीवन में आ जाएं. It may be the death of your loved ones. हो सकता है कि आपके खास अजीजों की मृत्यु भी क्यों ना हो जाए. It may be the lack of finance and also material thing or God's provision. हो सकता है कि आपके आर्थिक या किसी भी जो समस्या में आप गुजर रहे होंगे. We must not give up on God. आप परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए. So I've shared with you 2 things how to be a good pastor. मैंने 2 बातें आपसे अभी तक कहा है कि कैसे एक सेवक बन सकते हैं. Number 1, his identity. You need to be holy before God.
sanctity सब- before सब- God. सबसे पहले आपका जो पहचान है कि पवित्रता यानी एक संत के रूप में पवित्रता में आपको बने रहने की आवश्यकता है। Number 2, you need to be steadfast. You need to be faithful. और दूसरा, आपको विश्वास योग्यता में बना रहना है। Be like Jesus. Be like Moses. Right to the यीशु end. मसीह की- You don't give up on God. यीशु मसीह की तरह, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह अंत तक विश्वास योग्यता में बने रहने की आवश्यकता है। Faithful in your daily prayer. अपने रोज की प्रार्थना में विश्वास योग्यता में बने रहें। Faithful in daily reading of God's word. परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आप विश्वास योग्य में रहें। Faithful in witnessing. आप दूसरों को सुसमाचार सुनाने में आप विश्वास योग्यता दिखाएं। Faithful to God's house. परमेश्वर के भवन के लिए आप विश्वास योग्यता से रहें। Faithful to your spouse. अपने पत्नी या पति के लिए आप विश्वास योग्यता से रहें। And lastly, make sure you're faithful to the Lord. और प्रभु के लिए देने और उसके लिए आप विश्वास में बने रहें। The third point, this is my last point. और तीसरी बात जो है, आखिरी बात है, उसको हम सुनेंगे। How to be a good pastor. कैसे एक अच्छा एक सेवक बनना है। Number 3 is called his satisfaction. तीसरी बात जो है, संतुष्ट व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। Look at your Bible, Ephesians chapter 1 verse 1. इफिसियों के पत्री अध्याय 1 का 1 वाक्य को पढ़ेंगे एक बार फिर से। He said, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. और वो कहते हैं, जो पवित्र और विश्वासी, जो अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो लोग मसीह यीशु में संत हैं और जो विश्वास योग्य हैं। Look at verse 1. वचन को, पहले आयत को आप ध्यान से देखेंगे। In the English Bible, there's the word in, I-N, in. In और appears two times, right? In this verse. अंग्रेजी के शब्द में, अंग्रेजी के वाक्य में, बाइबल में, कि मसीह यीशु में, जो में का शब्द है, वो 2 दफा वहां पर इस्तेमाल किया गया है। He say, to the saints who are in Ephesus and those that are in Christ Jesus. जो यहाँ कहते हैं यीशु मसीह में और जो लोग एफिसस में हैं। This means you and I live in 2 places. और इसका मतलब आपका और मेरा जिंदगी जो है, हम 2 जगह पर हम जी रहे हैं। One, we live on the earth. पहला, हम इस धरती पर जी रहे हैं। At the same time, number 2, we live in the spiritual realm. और दूसरा, हम आत्मिक दुनिया में मसीह यीशु में जी रहे हैं। The Bible say in the book of Ephesians, we live in the heavenly realm. और बाइबल बताती है कि एफिसस कलीसिया जो है, आत्मिक यानी स्वर्गीय वस्तु पर विश्वास करते हैं। So your citizenship may be in India. हो सकता है कि आपका जो नागरिकता भारत देश के लिए है, but you're also in Christ Jesus. और आपका जो नागरिकता है यीशु मसीह में भी है। So you live in 2 places. आपका जो नागरिकता है 2 जगह से जुड़ा हुआ है। You live on this earth, at the same time you live in heaven. आप यहाँ पर भी जी रहे हैं और साथ साथ आप स्वर्ग के जिंदगी को भी आप जी रहे हैं। Once upon a time, we were all in Adam. और एक समय हम सब के सब आदम के अंदर थे। We all live in sin. और हम सब पाप में जी रहे थे। We are dead spiritually. और हम आत्मा में मर चुके थे। But then when we receive Jesus into our heart, जब यीशु को हमने स्वीकार किया अपने हृदय में, God made you and I to become saints. परमेश्वर आपको और मुझे धर्मी यानी पवित्र बना दिया है। Then at the same time, He made you and I to live in Jesus Christ. और साथ साथ उसने धर्मी के पवित्रता के साथ साथ उसने हमें मसीह यीशु में जीने का भी कर दिया है। So where is your satisfaction today? आपका जो संतुष्टि किस में है? Your satisfaction today is in Christ Jesus. और आपका जो संतुष्टि है मसीह यीशु में है। Even though you may be living in your spiritual Ephesus. हो सकता है आज आप इस संसार में एक एफिसस के जगह पर जैसे आप जी रहे होंगे। Your Punjab is like Ephesus.
आपका जो पंजाब है एक एफिसस के देश की तरह ही है। So you live in your spiritual Ephesus, that's Punjab. आप एक जिस स्थान में है वो आपके लिए एक आत्मिक एफिसस के समान है। But at the same time, you live in Christ Jesus. और साथ साथ आप मसीह यीशु में भी जी रहे हैं। You are no more living through the line of Adam. आप जो है अब आदम के जीवन की तरह नहीं जी रहे हैं। Christ already set you free from the bondage of sin, from the world, and from the devil. और मसीह यीशु ने आपको आदम के उस पाप से उसने छुटकारा दे दिया, आपको आजाद कर दिया है पाप से, श्राप से, शैतान के तमाम बंधन से। Today, your spiritual position is in Christ. और आज आपका आत्मिक जो स्तर है वो मसीह यीशु में है। Because you are in Christ, you will be satisfied with two things mentioned at Ephesians chapter 1 verse 2. और आप यीशु मसीह में होने के कारण आपको जो दो बातों में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चीजों से आप संतुष्ट किए जाएंगे। वचन दूसरा What is आयत your में हम देखेंगे satisfaction? What किस is your तरीके का संतुष्ट satisfaction? आपका Look at संतुष्टि chapter- किस में है। Yeah, look at chapter 1 verse 2. आप एफिसियों के अध्याय 1 का दूसरा वचन को देखिएगा। हमारे If you पिता are in परमेश्वर, Christ, if you are in Christ, it says here, grace यदि- will be to you and peace from God and also from the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर क्या कहा जाता है, कहा गया, लिखा गया है, यदि आप मसीह यीशु में हैं तो लिखा हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति के द्वारा आपको संतुष्ट किया जाता है। Because you are in Christ Jesus, you experience two things mentioned at verse 2. दूसरा जो आयत में जो दो बातें जो लिखी है जो मसीह यीशु के द्वारा आपको मिल रहा है। Number one, you experience grace because it says verse 2, grace to you. Verse 2 say, grace to और you. यहाँ दूसरा वचन कहता है अनुग्रह आपको मिल रहा है। Do we need God's grace every day of our life? क्या हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है हर रोज के दिन में? Every day I need the grace of God. हर रोज मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। I've been serving the Lord for 39 years in the ministry. और ये पासवान जो हैं 39 साल ये प्रभु यीशु मसीह में सेवकाई कर रहे हैं। Because of his grace, I experience blessing in my life. उसके अनुग्रह के कारण आज मैं उसके जीवन को मैं अपनी जिंदगी में पा रहा हूं। Because of his grace, for 39 years I've been serving God without running out of steam or run out of strength. Because of his grace, or because of his grace. उसके अनुग्रह के कारण 39 साल यानी एक कम 40 साल जो है किसी भी प्रकार के रुकावट के, किसी भी कमजोरी के बिना मैं प्रभु के लिए दौड़ पा रहा हूं। You see, Paul says, because you are in Christ Jesus, then grace to you. Grace, God's grace will be to you. क्योंकि यीशु मसीह में आप हैं, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए दिया गया है। You can never be a great pastor or a good pastor without God's grace. आप कभी भी एक अच्छा सेवक तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप मसीह यीशु में अनुग्रह को नहीं पा लेते। We all need God's grace in our life. हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह की बहुत जरूरत है। I started the church for 39 years. I tell you, it is all because of God's grace. I am what I am today is because of his grace. और मैं परमेश्वर के सेवकाई को पिछले 39 साल यानी एक कम 39 साल को उन्होंने 40 साल उन्होंने शुरुआत करके हो गया है, आज भी प्रभु के अनुग्रह में उछल रहे हैं। If you have provision, if you have food, just like in this diagram that says, it means the grace of God is upon your life. यदि आप अपनी जिंदगी में अगर कोई भी जरूरत को अगर आप पूर्ति होते देख रहे हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके ऊपर है। I love this verse very much. John 1:16, from the fullness of his grace,
we receive one blessing after another. और यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 1 का 16 वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसका जो भरपूरी का जो अनुग्रह है, यहाँ लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह है। Remember, if you got a house, just like in this diagram, if you got a house and a land, there is the grace of God that has been shown over your life. यदि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आपके पास कोई जमीन है, आपके पास घर है, तो इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए वो आपके पास है। Now, what is grace? तो अनुग्रह क्या है? Grace is God giving you what you don't deserve. और अनुग्रह वो है जो परमेश्वर आपको देता है जिसके काबिलियत हम में नहीं है। If you receive His blessing, it's all because of God's grace. यदि आप इस आशीष को पा चुके हैं या पा रहे हैं, तो ये प्रभु के दया अनुग्रह की वजह से है। If you receive God's kindness, it is all because of His grace. अगर आप Kindness. दया को पा रहे हैं, तो ये केवल परमेश्वर की वजह से है। If you receive God's reward, it is all because of His grace. यदि आप कोई आशीष को पा रहे हैं, तो केवल परमेश्वर के कारण ही आप पा रहे हैं। If you receive His love, it is all because of His grace. यदि आप उसका प्रेम को पा रहे हैं, तो केवल उसके अनुग्रह की वजह से है। If God has blessed you with many souls in your church, it is all because of God's grace. आज आपकी कलीसिया में कितने भी लोग हैं जब जो आशीष पा रहे हैं, उस केवल परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। If God has given you the strength to build churches, to plant churches, to pioneer churches, it's all because of God's grace. यदि आपको परमेश्वर ने अभी तक सामर्थ्य दिया है कलीसिया को स्थापना करने, सुसमाचार प्रचार करने, लोगों को प्रभु के लिए बढ़ाने के लिए, ये केवल उसका अनुग्रह ही है। If you see God's blessing you, providing for you on a daily basis, on a monthly basis, and a yearly basis, it is all because of His grace. यदि आप देख पा रहे हैं आपकी जिंदगी में एक एक कार्य जो दिन भर दिन सफलता हो रहा है, ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह की ही वजह से ही है। Now, because we are in Christ Jesus, then grace is to you and to me. Amen. यदि आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह मसीह यीशु में हैं, इसीलिए आपके ऊपर मेरे ऊपर अनुग्रह है। Today I tell you, I have everything that I need. I don't lack anything. It's all because of His grace. Grace to me and also grace to you. Amen. आज मैं आपको बता सकता हूं इस बात से कि मेरे जिंदगी में कुछ भी अगर जरूरत है या कुछ भी मेरे जिंदगी में आज पूरा हो रहा है, तो केवल जो अनुग्रह आपको और मुझे मसीह यीशु में दिया गया। Next, Paul says is peace. Peace. दूसरा पौलुस कहता है इफिसियों के पत्र अध्याय 1:2 में कहता है कि अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलते रहे। Peace from God and from the Lord Jesus Christ. शांति परमेश्वर पिता और मसीह यीशु में तुम्हें मिले। Not everybody experience peace. You know that? हर एक व्यक्ति, आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति उस शांति को अनुभव नहीं कर पाते। Not everybody experience grace in their life. हर एक व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाते। Sometimes in ministry, people use their strength to serve the Lord. Their strength, their ability, their intellect to serve God. They don't depend on God's grace. और कई बार लोग जो है सेवकाई में किस तरह की गलती करते हैं, अपना बुद्धि ज्ञान समझ और अपनी ताकत पर ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर नहीं होते। Sometimes we as pastors, we also sometimes don't experience peace in our life. कई बार हम सेवक होने के नाते हम भी कभी-कभी परमेश्वर की शांति को अनुभव नहीं कर पाते। Why sometimes we don't experience peace of God in our life? क्यों हम इस तरीके के जो अशांति को अनुभव करते हैं? If you look at this verse, Isaiah आप 48 verse 22, just write down the verse. आप लिख के रख सकते हैं यशायाह नबी किताब 48वें अध्याय का 22 वचन 2 और 57 अध्याय और उसका 21 पद को आप बाद में पढ़ सकते हैं।
Yeah, these two verses speaks of the same thing. और यहाँ पर दोनों वचन एक समान ही बात करता है। It says there is no peace, says God, to the wicked. यहाँ पे 22:48-22 में लिखा है, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का ये वचन है। There's no peace, says God, to the wicked. तो दुष्ट के लिए परमेश्वर की ओर से कोई शांति नहीं है। Sometimes pastors and leaders can be wicked in their thoughts life. हो सकता है कि वह अपनी सेवकाई में कई बार इस तरीके के जो आज के सेवक करने वाले लोगों में इस तरीके का जो बुराई का विचार रखने वाले भी हो सकते हैं। Sometimes we can be wicked in our words. हो सकता है हम अपने शब्दों में हम बुरे हो सकते हैं। Sometimes we can be wicked in our action. हो सकता है हम अपने कामों में कई बार हम बुरे हो सकते हैं। Bible says there's no peace to those that are wicked. बाइबल कहती है जो बुरे हैं या दुष्ट हैं उन्हें परमेश्वर की ओर से शांति नहीं मिलेगा। Have you ever come across pastors, those that are wicked, especially when you come to their words and in their action and in their thoughts life? I'm sure you do, right? हो सकता आप में ऐसे अनुभव किए होंगे, कई ऐसे लोगों को सेवा कर रहे होंगे पर उनके शब्दों में उनके कामों में बुराई या दुष्टता दिखाई देता होगा। Not all pastors are good. सभी जो सेवक हैं जो कहते हैं सेवक हैं वह ठीक नहीं है। Some are very evil in their words. और कई लोग जो है अपने शब्दों में बहुत ही बुरे हैं। Some are very critical and sarcastic in what they say and what they speak. और कई लोग जो हैं आलोचना करते हैं, हर एक बातों में नुक्स निकालते हैं, बुराई को गढ़ते हैं जो हमारे शब्दों को सुनते हुए। If you want to experience peace of God in your life, make sure you are in Christ. यदि आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में अपनी सेवा में कि परमेश्वर की शांति को अनुभव करें तो आप मसीह में बने रहें। That's where you get your satisfaction. वहीं पर ही आप अपने संतुष्टि को पा सकते हैं। Now look at this verse, Isaiah 59 verse 8. यशायाह नबी किताब 8वां वचन को हम देखेंगे यहाँ पर। This is the last verse I'm going to share with you. यह आखिरी वचन है जिसे मैं बात करूंगा आप सबके लिए। The way of peace they have not known, and there's no justice in their way. They make themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. और यहाँ पे लिखा है शांति का मार्ग वह जानते ही नहीं और ना उन्हें व्यवहार में न्याय है, उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पद टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। You see, the Bible says there's no justice in their way. और यहाँ पर वचन कहता है उनके मार्गों में कोई न्याय नहीं है। They don't do right. वो कभी भी सही काम नहीं कर सकते। They don't live right. वो सही काम में नहीं जी सकते। No justice. The Bible says no justice. उनके व्यवहार में कोई न्याय नहीं है। And look at their path, crooked path, crooked. उनका जो मार्ग को देखिएगा, उनके पद सब टेढ़े हैं। Bible says whoever takes that way, there's no peace. और वचन कहता है जो कोई भी व्यक्ति उनके मार्ग को लेता है उसे भी शांति नहीं मिलती। Can I encourage you, those of you who are pastors? मैं जो जितने पासवान यहाँ मौजूद है सेवा कर रहे हैं उन सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। Those of you who are lay pastors or lay leaders. हो सकता है आप कलीसिया के अंदर सेवकाई कर रहे हो एक अगुवे के रूप में। Those of you who are Bible school students. और जो लोग जो वचन को सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। Those of you who will be graduating soon or maybe today. हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं आज प्रभु के वचन को मतलब एक साल कंप्लीट करके दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं। Can I encourage you, live in Christ Jesus. That will be your satisfaction in ministry. और आपको मैं एक शब्द से उत्साह करना चाहता हूँ, प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, मसीह यीशु में रहना जीना सीखें, यही काफी है आपके जीवन के लिए। When you live in Christ Jesus, you will experience His grace.
और यदि आप मसीह यीशु में जीना सीखेंगे तो आप उसके अनुग्रह को पाएंगे, You will experience His peace. आप उसके शांति को पाएंगे। So how to be a good pastor? किस तरीके से एक अच्छा एक सेवक बन सकते हैं? Number one, His sanctity. Remember, you are a saint. सबसे प्रथम बिंदु जो है आपका पहचान है, आप एक पवित्र एक संत हैं You got to be holy. और आप पवित्रता में बने रहने की आवश्यकता है। Number two, you got to be steadfast. और दूसरा, आप जो है विश्वास योग्यता में बना रहने की आवश्यकता है You got to be faithful right to the very end. और आपको जो है विश्वास योग्य रहना है अंत तक। Look at your Bishop Paul Timon. आप पास्टर बिशप पॉल को देख सकते हैं। Wow, he has been serving God since day one until now. और वो जब से सेवकाई में उनको जानते हैं तब से लेकर आज भी वो सेवकाई में विश्वास योग्यता के साथ बने There हुए are हैं। times they face difficulty or difficult moment in their life. He and his wife continue to be faithful, continue to be steadfast. और जैसे बिशप पॉल हैं जिनका शुरुआत में कई समस्याओं को दिक्कतों को सामना करना पड़ा, फिर भी उस समय से लेकर आज तक वो विश्वास योग्यता में बने हुए हैं। You see, I've been serving the Lord for 39 years. I'm still serving God. Even today, till today, I'm still serving the Lord. आज भी प्रभु के दास जो हैं एक कम 40 साल के सेवकाई में हो चुके हैं, आज भी प्रभु में बने हुए हैं और विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर रहे So हैं। number one, you must remember you're a saint. You need to be holy before God. तो आपको याद रखना है, पहला आप एक पवित्र व्यक्ति हैं प्रभु के सम्मुख में। Number two, you need to be faithful. You need to be steadfast. और दूसरा, आपको विश्वास योग्यता में बने रहने की आवश्यकता है। Number three is your satisfaction. Your satisfaction is in Jesus. Even though you stay in Punjab, in Ephesians, but actually you are in Christ Jesus. That is your true satisfaction in Christ. यदि भी आप भारत देश में कई अलग अलग प्रांतों में हैं, फिर भी वह आपका आत्मिक एफिसस है और वहां पर आप जी रहे हैं और साथ साथ मसीह यीशु में भी आपको जीने की आवश्यकता है जो आपको संतुष्टि देती है। It is when you live in Christ that you experience two things. Grace will be given to you. Number two, you will experience His peace in the home, in your church, and in your ministry. अगर आप मसीह यीशु में हैं तो ये दो बातों से आप संतुष्ट किए जाएंगे, प्रभु के अनुग्रह और उसके शांति से आपके घर में, आपकी सेवा में, आपकी कलीसिया में, आपके हर एक जीवन के क्षेत्र में आप इस संतुष्टि को अनुभव करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Amen. Let's bow down our heads. आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। Father, I want to pray for all your servants, those who are online watching. May you watch over each of their lives. पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय में इस जूम के माध्यम से जितने भी परमेश्वर तेरे दास और दासी खुदावन यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। Remind all of them that they are saints before God. प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि वह सब के सब प्रभु जी तेरे पवित्र संत हैं, इस बात को प्रभु जी वह सब समझने पाए। That they need to be holy before you can use any one of them. परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि वह तुझसे इस्तेमाल किए जाने से पहले वह प्रभु जी पवित्रताई में बने रहने में आप उन्हें मदद करें। Teach every single one of us to be faithful, just like you, just like Moses. परमेश्वर हम में से हर एक को एक विश्वास योग्यता के रूप में परमेश्वर होने के लिए हमें सिखाएं, जैसे यीशु आप हैं और जैसे परमेश्वर आपके भवन में मूसा था। Lord, you remind all of us that our satisfaction is always in Christ Jesus. पिता, हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी आप में होने के वजह से हमारे जीवन में संतुष्टि है, क्योंकि प्रभु जी आप में हैं हम।
Because we know when we are in Christ, that's where we will experience your grace and your peace in our home, in our church, and in our ministry. प्रभु जी, हम जानते हैं इस बात को, जब हम आप में बने रहते हैं तो अनुग्रह और शांति हमारे घरों में, हमारे सेवा में, हमारे तमाम वस्तु में, तमाम बातों में होती है। इसलिए हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। Lord, as I end, may I invoke your grace to be upon all the hearers and your peace to be upon all their families. परमेश्वर, जैसे हम इस सेशन को हम समाप्त, इस चीज को हम समाप्त कर रहे हैं तेरे वचन से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं और इन सभी के ऊपर आपका जो अनुग्रह और आपकी शांति को यीशु मसीह के नाम से हम देते हैं। I give thanks and I pray in Jesus' name. और प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Thank you. Thank you, Thank you Pastor. very so much. Thank you so for much, your Pastor. Thank time and also for, Bishop Paul Temel for the invitation. God bless you. God bless you, Bishop. Thank you. Pastor, time back to you. Amen. So thank we you, are Pastor. so Thank you so blessed- much. We are so blessed by your word. This is not only from the text, it's your life, Pastor. We have seen you are a giver, you are a perfect potential preacher like Ezra. You are a good pastor and punctual everything. Thank you so much once again, You're Pastor. always welcome. You're always welcome. Amen. God bless you. Convey Yeah. our greetings to all Yeah, our you- church, Pastor Kevin. One more time, it's a Chinese New Year time. So we are greetings to you, the Chinese New Year. Yeah, thank you very much. Thank you, Pastor. Okay. Thank you for Okay. joining us. All Okay, right. God bless. God bless. God Bye. bless you. Bye. Thank you for Thank interpreting. you so much. Thank you Uh, for interpreting. Thank you, Pastor. Amen. Okay, thank you, Pastor. Thank Okay, bye-bye. you. Bye bye. 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 Okay. Okay, praise Lord. Okay, सभी को जय मसीह की एक और बार, जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं सभी को यीशु मसीह के नाम में हम अभिनंदन देते हैं। पास्टर, ओवर टू पास्टर पॉल।